عمران خان حکومت نے جھوٹے دعووں اور دشنام ترازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ گزشتہ حکومت کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا۔ مخلوط حکومت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ محمد نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، لیکن گزشتہ حکومت نے جاری ترقیاتی منصوبوں کو روک کر ملک کا نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی کو پاکستان کی ترقی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اتحادی حکومت کی بہتر پالیسیز کے باعث ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 22 کروڑ عوام سے وعدہ ہے کہ ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کو ڈی آئی خان جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں علاقے کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے سی پیک کے مغربی روٹ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ڈی آئی خان اور میاں والی کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا ہے۔ سی پیک کے مغربی روٹ سے علاقے میں خوشحالی سے ہمکنار ہوں گے، وزیر اعظم کا عزم۔ پنجاب اسمبلی توڑنے میں رکاوٹ ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عمران خان خیبر پختونخوا اسمبلی کیوں نہیں توڑتے؟ دوسروں پر الزام تراشی سے پہلے عمران خان کو خود پر نظر ڈالنی چاہیے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے کی کرپشن کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا تقریب سے خطاب۔ نیا پاکستان بنانے کا نعرہ لگانے والے ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر چھوڑ گئے۔ اتنا برا سلوک کسی نے ملک کے ساتھ نہیں کیا جتنا عمران خان نے کیا۔ عمران خان جمہوریت اور سیاست کی ریڈ لائن کو عبور نہ کریں۔ اب سیاستدانوں پر 100% ذمہ داری ہے۔ وزیر ہوابازی اور ریلوے خواجہ سعد رفیق کا اپنے والد خواجہ محمد رفیق شہید کے یوم شہادت پر سیمینار سے خطاب۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی۔ اردو شاعری کے شیدائی۔ آج اردو کے 2 عظیم شعراء منیر نیازی اور پروین شاکر کے یوم وفات منایا جا رہا ہے۔ دونوں عظیم ادبی شخصیات اپنے کلام کی بدولت اہل ذوق کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ Ages. Nice off the back foot. کراچی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا پہلا دن۔ پاکستان کے پہلے اننگز میں 5 وکٹس پر 317 رنز، 110 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد بابر اعظم اور سرفراز احمد کے درمیان 196 رنز کی شراکت۔ سرفراز احمد 86 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم کی ٹیسٹ کیریئر کی 9ویں سنچری، 161 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ سیریز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ایک سال میں سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز بن گئے۔ رواں سال میں 2436 سے زائد رنز بنا لیے۔ محمد یوسف نے 2006 میں 2434 رنز اسکور کیے تھے۔ بابر اعظم نے ایک سال میں سب سے زیادہ 25 50 پلس سکورز کا سری لنکا کے سابق کپتان کمار سنگاکارا کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔
किस्से जो कभी बयां न हुए, सकाफतें जो कभी आम न हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मखलूत हुकूमत मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों की बुनियाद रखी जा रही है। गुज़श्ता हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई है। इमरान खान हुकूमत ने झूठे दावों और दुश्मन तराजी के अलावा अवाम को कुछ नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने जारी तरक्याती मंसूबों को रोक कर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इमरान नियाजी को पाकिस्तान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं था सिवाय अवाम को गुमराह करने के। इमरान नियाजी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की बेहतर पॉलिसियों के बायस मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये उसका ख्वाब था जिसने पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। पेशावर से लेकर कराची तक नवाज शरीफ का ख्वाब इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा और शर्मिंदा ताबीर होगा। और यकीन करें कि ये जो मगरबी रूट है डेरा इस्माइल खान रोप तक, ये वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये उसका हिस्सा है, और जो कि 2017 में इसका पूरा प्लान बन चुका था। जो हुकूमत आई जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने इन मंसूबों को भी बिल्कुल सर्द खाने में डाल दिया। पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, किसी को शक नहीं था, लेकिन उस कुदरत को अल्लाह ताला को मंजूर था कि मखलूत हुकूमत की काविशों से दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाजी की हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए, जिससे बैरूनी सरमायाकारी न होने के बायस मईशत तबाह हुई। दोस्त ममालिक के तहफ़ बेच दिए गए, जिससे पाकिस्तान की दुनिया के सामने सुबकी हुई। तोहफा अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलता है तो वो वज़ीर आज़म को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। आप खान साहबान को मिलता है, पंजाब के अवाम को मिलता है, सिंध के अवाम को मिलता है, बलूचिस्तान के अवाम को मिलता है, कबायली अवाम को मिलता है। ये आपकी इज्जत है। और फिर उससे ऊपर खाना काबा का मॉडल हो, उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की हजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। वतन की बका के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये है जुर्रत, किरदार, ये है बहादुरी, ये है वो वलवला और ये है वो कमिटमेंट जो इन जवानों और अफसरों ने हमेशा दिखाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाक़यात की रोकथाम के लिए और इनको दोबारा ये जो सर उठा रहा है ये नासूर, इसको कुचलने के लिए इंशाअल्लाह हम मीटिंग कर रहे हैं और कोई हम दकीका फरोगजात नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और तमाम वसाइल हम बुरुकार लाएंगे और इंशाअल्लाह मिलकर सूबाई हुकूमत और वफाक और इदारे मिलकर इंशाअल्लाह इसको हम अपना डील करेंगे और इसको मुकम्मल
इसकी बेहतरी होगी ताकि पाकिस्तान के अंदर दोबारा अमन लौट के आए। वजीर आजम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान कुदरती आफत का शिकार हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से जनवरी में जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान अपना नुक्ता नजर दुनिया के सामने रखेगा। वजीर आजम ने डेरा इस्माइल खान डिवीजन के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों, चश्मा हाइडल पावर स्टेशन के यूनिट 8 की रिफर्बिशमेंट, चश्मा राइट बैंक कैनाल लिफ्ट कम ग्रेविटी, चश्मा हाइडल पावर प्रोजेक्ट और टांकजाम डैम का संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने अब्दुल खेल और बंद कुराई में 132 केवी के 2 ग्रिड स्टेशन का भी संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यार्क सागो सेक्शन का संगे बुनियाद भी रखा, जो सी पैक के मगरबी रूट पर यार्क सागो योप मोटरवे का हिस्सा है। ये मोटरवे मजबूरी तौर पर 210 किलोमीटर तवील है। इस मौके पर पेजू से टांक रोड और डेरा इस्माइल खान बाईपास की बहाली समेत हालिया बारिशों से तबाह हाल सड़कों की बहाली के काम का इफ्तिताह भी किया गया। वजीर आजम ने गोमल यूनिवर्सिटी पहाड़पुर कैंपस का संगे बुनियाद और बनू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लकी मरवत कैंपस की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। DI खान जाते हुए दौरान प्रवास वजीर आजम शहबाज शरीफ को इलाके की तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अनासीन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में मेगा तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद रखने के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मौजूदा मखलूत हुकूमत ने माशी चैलेंजेस के बावजूद अवामी फलाह के मंसूबों का दायरा कार मुल्क के तूलो अर्ज तक वसी किया है, जो इस बात का गम्मास है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। इसी हवाले से तफसील हमें बताएंगे आगा मसूद खालिद। DI खान और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मईशत की तबाही का एजेंडा लाने वाले मायूस हो चुके हैं। मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी से पॉलिसीज बनाना होंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते का बावकार मुल्क बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। हमारा ख्वाब ये है कि अपनी जोग्राफियाई और महल वक़ूअ की अहमियत के हवाले से उसको तरक्की का वही हक दिया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पसमानदा इलाका पूरी दुनिया के लिए एक तिजारती सेंटर की हैसियत इख्तियार कर रहा है और अब ये तिजारती और इक़्तिसादी लिहाज से जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ गुज़रगाह ही नहीं होगा, इंशाअल्लाह इसकी हैसियत अब एक मंजिलगाह की होगी। जनूबी इस्लाम में मेगा तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर मवासलात व पोस्टल सर्विसेज मौलाना असद महमूद ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने तरक्की के सफर का दोबारा आगाज वहीं से किया है जहां साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सफर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि माजी में तरक्की के सफर को रोक दिया गया था और आज ये सफर दोबारा शुरू होने जा रहा है। वजीर आजम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने तरक्की के उस सफर का आगाज जहां मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में रुक गया था, उसका सखर हैदराबाद मोटरवे के बाद आज सीपैक के मगरबी रूट का यारक रोप के एक सेक्शन का इफ्तिताह किया, उसके साथ दीगर मंसूबाजात का भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम के मशीर अमीर मकाम ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान ने इल्जामात की सियासत के अलावा कुछ नहीं किया। अवाम से 50 लाख घरों और 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाला आज भी झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहा है। उनका कहना था कि मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेहरा मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है। तरक्की का सफर वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में जारी रहेगा। सूबे के अवाम को उनसे जान छूट जाए और मैं उनको कहता हूँ कि इस तरह झूठे शख्स का जो वही 2 करोड़ नौकरियों और घरों से लेकर आज तक उसकी कोई वादा उसने पूरा नहीं किया और पूरा दूसरे पर इल्जामात में लगाते रहे आज तक। और दूसरी तरफ ये मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ये सैलाब आता और ये नालायक यहाँ बैठता तो इस पाकिस्तान की आवाम का क्या बनना था। झूठे शख्स की कि उस पर मजीद यकीन करना, एतमाद करना मुनासिब नहीं है। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मौलाना लुत्फुर रहमान ने कहा कि सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से मौजूदा हुकूमत खातिर खा इकदामात कर रही है, जिसका बराह रास्त फायदा अवाम को हो रहा है। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान की क़यादत में स्कूल्स और कॉलेज की मंजूरी, हस्पतालों को बेहतर बनाने और उनकी सहूलियात की फराहमी, मेडिकल कॉलेज की तामीर, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड का क़याम,
मुफ्ती महमूद स्कूल एंड कॉलेज और मुफ्ती महमूद लाइब्रेरी का क़याम, घर घर सुई गैस कनेक्शन की फराहमी, बेरोज़गारों को रोज़गार की फराहमी, ये सब मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचे हैं और इलाके के अवाम को उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों की तकमील से अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा और मवासलाती राब्तों के क़याम से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि टैक्स की शरह में इजाफे के लिए अवामुन्नास की आगाही ज़रूरी है। कवानीन पर अमल दरामद से ही मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। कराची में टैक्स दहिंदगान की आगाही से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि जमहूरी कुव्वतें इंतशार के खात्मे और इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करती हैं, जिसका मकसद मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। सदर ममलिकत का कहना था कि टैक्स चोरी करना सबसे बड़ी बदनुमानी है। करप्शन के खात्मे से ही मईशत में बेहतरी आ सकती है। राहे जमहूरियत में जामे शहादत नोश करने वाले रफ़ीक मिल्लत ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद के 50वें यौम शहादत पर सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान दौलत और इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है। वो ना तो मुल्क व कौम से मुखलिस हैं और ना ही अपने कारकुनों से। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान है, आज उसी हाथ को काट रहा है जिसने उसे खिलाया। वज़ीर दिफा ने कहा कि इमरान खान ने अगर इस्तीफे देने हैं तो केपी में इस्तीफे दें, ना वहाँ परवेज़ इलाही है ना कोई और। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सियासत को हर तरह के मफादात से आज़ाद किया जाए। उन्होंने कहा कि तसादुम की सियासत के नतीजे में कश्मीरियों के कौज़ को नुकसान हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने उसूलों और भाई के साथ खड़ा रहा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के मकाम तक पहुंचा दिया है। इस नहज पर खड़े हैं, मौशी अबतरी है, दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब जेल जाने को तैयार हो जाएं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुल्क को हकीकी और पायदार तरक्की की तरफ गामजन करना है तो जमहूरियत और जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करना होगा। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से 3000 अरब 2017 तक लिया गया, जबकि इमरान खान ने 10 अप्रैल 2022 तक 60,000 अरब रुपए कर्जा लिया। शहबाज शरीफ ने जब मिसाक मईशत पर बात की तो इमरान खान ने इसे मजाक में उड़ा दिया। पाकिस्तान का नुकसान हम सब का नुकसान है, लेकिन इमरान खान इससे मुस्तस्ना है। वज़ीर आज़म के मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का सिफारती इन्हिदाम हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़ाल सिफारतकारी से हमने फिर से नाराज़ दोस्त ममालिक के साथ खारजा ताल्लुकात मजबूत किए हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हुकूमत ने रोज़े अव्वल से ही PTI की फैलाई गई तबाही से पाकिस्तान को निकालने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म के मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमरज़मान कायरा का कहना था कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार किया। कमरज़मान कायरा का ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मुल्की सरकारी दौरों का खर्च अपनी जेब से अदा करते हैं। खान साहब, आपके दौर में पाकिस्तान का सफारती इन्हिदाम हो रहा था, आप पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके गए थे। हत्ता के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने और हिंदुस्तानी हुकूमत ने कश्मीर के ऊपर नई कानून साजी करके उसको अपना पार्ट डिक्लेयर कर लिया, उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां कर ली और खान साहब को दुनिया के किसी मुल्क की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। बिलावल साहब ने जब से खारजा अमूर का महाज संभाला है, वो GSP प्लस हो, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों, वो यूनाइटेड नेशंस के साथ ताल्लुकात हों, वो IMF, वो वर्ल्ड बैंक, फ्लड्स के अंदर पाकिस्तान को जिस तरह की फाल सफारतकारी की ज़रूरत थी, इन सारे मामलात में उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है। कमरज़मान कायरा ने पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जमहूरी निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। आज PTI भी यही कह रही है, फिर हंगामा क्यों? जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। हम ये बात आज नहीं कह रहे, जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे न खान साहब ने उस वक्त उसको सुना, उसके ऊपर भी गालियां दी। फिर जब हम हुकूमत में आए तब भी हमने कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, आइए पाकिस्तान का बैठ के मामलात का हल निकालना चाहते हैं। अब जब उन्होंने ये मुतालबा शुरू किया और शर्त रखी
कि पहले इलेक्शन की डेट दो फिर बैठूंगा, हजूरे वाला शर्तें रख के डायलॉग नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पीटीआई जमहूरी इक़दार अपनाए, हम किसी गैर आनी इक़दाम और इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, ताहम सियासी मैदान में इमरान खान का डटकर मुकाबला किया जाएगा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि मीडिया पर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के मखसूस शहरों से वीज़ों के इजरा पर पाबंदी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अपने एक बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा जारी करने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। बात करते हैं तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में गैर सरकारी तंजीमों में ख़वातीन पर काम की पाबंदी आयद करने के बाद बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों ने मुल्क में अपने प्रोग्राम्स मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, सेव द चिल्ड्रन, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और केयर इंटरनेशनल ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने प्रोग्राम मुअत्तल कर रहे हैं क्योंकि वो इंतजामिया के हुक्म पर वजाहत के मुंतज़िर थे। सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड राइट ने कहा है कि खवातीन और बच्चों को इमदाद के लिए खवातीन अमला बहुत अहम है। अगर आपके पास खवातीन का सेहत का अमला नहीं है तो आपको उन लोगों तक रसाई हासिल नहीं होगी। इसी पर बात करेंगे नाज़रीन। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया न्यूज़ शो एट 6 के लिए। सर, हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो गैर सरकारी तंजीमों में ख़वातीन पर काम करने की पाबंदी आयद की जा रही है और इसके बाद अभी जो हमने खबर शामिल किया है कि बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों ने भी अपने प्रोग्राम्स मुअत्तल करना शुरू कर दिए हैं और अफगान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की आला तालीम और नौकरियों पर पाबंदी का फैसला अफगानिस्तान की मुश्किलात में किस कदर मज़ीद इजाफा कर सकता है? रिजवान, देखें, पहली बात तो ये कि रियासत का जो वजूद है ना वो क्यों ज़रूरी है। रियासत के वजूद का जो असल काम है वो प्रोटेक्ट करना होता है अपने शहरी की लाइफ को, लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को। ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी जो वेलफेयर है सिटीजन की, उनके फेथ की, उनके वेलफेयर की, उनकी लाइफ की, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे सारी दुनिया जुड़ी हुई है, वहाँ पे कोई एक अकेला मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। और जब आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं तो वहाँ सिर्फ रियासतें एज एन एक्टर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही होती, बल्कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन OIC है, उसके साथ कोऑपरेट किए बगैर, उनके साथ इंटरेक्ट किए बगैर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चल सकते। एक तरफ तो आप ये क्लेम करते हैं कि जी हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ आपकी हरकतें ये हैं कि आपने जो वादे वईद किए थे, जितनी भी आपकी नेगोशिएशन हुए हैं इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ, चाहे उसमें रशिया हो, चाहे उसमें चाइना हो, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, ईरान हो, तो उस वक्त जो आपने बात की कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए और हम फिर एक रिफॉर्म लेकर आएंगे और ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखेंगे, ये आप ख़वातीन के हुकूक का ख्याल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने आपके लिए इतनी बड़ी एफर्ट डाली है, वो तो आप उस एफर्ट पे सारा आपने पानी फेर दिया। और फिर मुझे तो ये लगता है कि जो तालिबान की जो रिजीम है उनके अंदर यूनिटी भी मुझे नज़र नहीं आ रही। गवर्नेंस का तो इशू ये सामने खुल के आ रहा है, लेकिन उनके अंदर यूनिटी भी मुझे नज़र नहीं आ रही। यानी उनकी एक लीडरशिप एक बात करती है, दूसरी लीडरशिप दूसरी बात करती है, ऊपर वाली लीडरशिप कुछ और बात करती है, जो लोकल लीडरशिप है वो कुछ और बात करती है। तो बुनियादी तौर के ऊपर उनके हम आहंगी मुझे नज़र नहीं आ रही। और तीसरा ये है कि उनके पास मुझे लगता है विजडम की भी कमी है। ये जो इस्लाम की जो गलत तस्वीर पेश की जा रही है ना, इस्लाम में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ख़वातीन का बड़ा भरपूर किरदार रहा, जंगों के अंदर रहा, हॉस्पिटल्स के अंदर रहा, एजुकेशन के अंदर रहा। तो ये किस किस्म का इस्लाम है जो दुनिया के अंदर क्या ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस्लाम क्या है। और जिस इस्लाम को लेकर ये आगे चले थे सऊदी कल्ट को लेकर, वो वहाँ पे तो सारे रिफॉर्म आ गए, तो अब ये कौन सा कल्ट लेके आगे जाना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर उनके जहनों में चल क्या रहा है। क्या उनको ये सोच नहीं आती कि एक तरफ तो वो दुनिया से ताउन मांग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनको जो बैनुल अक़वामी है वो अपने धारे में शामिल करे, दूसरी तरफ ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनको किसी तौर जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते। तो फिर दुनिया से मदद किस बात की मांग रहे हैं? क्योंकि दुनिया ने तो बता दिया कि ये चीज़ें हैं, अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करते तो हम आपका साथ नहीं दे सकते। किस तरह से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं सर?
دنیا اس وقت ان کو مدد نہیں کرے گی. میرے خیال میں مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ دنیا اب افغانستان کے عام باشندوں کی مدد کے لیے اندر گھسے گی, اور یہ پھر دوبارہ ایک جنگ و جدل یہاں پہ شروع ہونے لگا ہے. ایک تو خود اندر خلفشار ہے ان کے, اب تک ان کا کمپلیٹ کنٹرول نہیں ہے, اور جو محسن کش ثابت ہو رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان نے ان کی ہمیشہ مدد کی ہے, پہاڑیں اکھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کی حرکتیں, اور ٹی ٹی پی جو وہاں پہ بیٹھ کے کر رہی ہے, اور پاکستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. جو ہم نے ٹرسٹ کیا تھا اور بات چیت کے ذریعے جو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی, اس کا تو یہ غلط فائدہ اٹھا کے جا رہے ہیں. اور ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا یہ اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ دنیا جو ہے ساری وہ ان کے بغیر نہیں جی سکتی, یعنی آئسولیشن کے اندر رہ سکتے ہیں. اور اگر یہ آئسولیشن کے اندر رہ سکتے ہیں تو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھاگ بھاگ کے پاکستان کے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ سارا اسلام آباد آپ کا بھرا ہوا ہے, آپ کے کراچی کے اندر اترے ہوئے, پوری دنیا میں بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں اگر اتنے ہی ان سے خوش ہیں؟ تو بنیادی طور پہ نہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, نہ یہ افغانستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب دنیا دیکھے گی اور ریجنل پاورز دیکھیں گے کہ یہ سورس آف انسٹیبلٹی ہے اس پورے خطے کے اندر, تو وہ انٹروین کریں گے, اور انٹروین کریں گے تو انہوں نے پھر مارے جانا ہے دوبارہ, اور پھر اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی معصومانہ شکل بنا کے تو پاکستان کی طرف لپکیں گے کہ ہماری مدد کریں. تو بنیادی طور کے اوپر ان کو سمجھنا چاہیے, ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. نہ آپ سے پاکستان خوش ہے, نہ آپ سے سینٹرل ایشینز خوش ہیں, نہ آپ سے ایران خوش ہے, نہ آپ سے چائنا خوش ہے. ہر کسی کو آپ سے کنسرن ہے, اور آپ ہیں کہ اپنی کیے چلے جا رہے ہیں. تو دنیا میں کیا آپ ہی عقل اور سارا اسلام آپ ہی کے یہاں اترا ہوا ہے؟ بالکل, طالبان کو بھی یہ سوچنا ہوگا, اپنی جو چیزیں ہیں اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر چلے. بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسن صاحب, ماہر بین الاقوامی امور, آپ اپنے ساتھ رہے اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین, چین میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. شنگھائی کے نزدیک واقع صنعتی صوبے یجانگ میں ایک دن میں 10 لاکھ نئے مریض سامنے آ گئے ہیں, جس کے بعد لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. دوسری جانب عالمی قوتیں چین سے حقائق سامنے نہ لانے کا شکوہ کر رہی ہیں. چین نے اب روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے نئے مریضوں کی تعداد بتانے سے گریز کرنا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب چینی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں 13,583 افراد ہسپتال میں داخل ہیں, جن میں سے 242 مریض ایسے ہیں جن کی حالت نازک ہے. ناظرین, کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے, اور 100 انڈیکس 485 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 40,155 پر بند ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں 14 کروڑ 68 لاکھ 80 ہزار روپے سے زیادہ کے شیئرز کا کاروبار ہوا, جن کی مالیت 5 ارب 13 کروڑ 46 لاکھ روپے سے زیادہ تھی. اسٹاک مارکیٹ میں 212 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ, 118 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 15 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے, اور بات کر رہے ہیں پہلے ہفتے کی, یہ ہفتے کے پہلے روز کی, جبکہ نازیہ یہ سال کے آخری ہفتے کا آغاز ہوا ہے, اور کاروبار میں ہمیں مجموعی طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ بہتری نظر آئی ہے. آج ندیم مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ معروف صنعت کار ہیں, آپ معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب. بہت شکریہ جی. ندیم مولوی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان رہا, گزشتہ ہفتے ملا جلا رجحان تھا, اور مجموعی طور پر ایک نیگیٹو ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں عدم استحکام نظر آیا تھا. کاروباری طبقے کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں, کون سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پچھلے ہفتے جو ہم نے مارکیٹ کو دیکھا تھا وہ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے تو شاید احساس ہو کہ مندی جو ہے صرف پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے, مگر در حقیقت یہ تھی کہ ساری دنیا کی مارکیٹوں میں مندی دکھا. سالانہ تجزیہ لیتے ہیں تو امریکہ مارکیٹ جو ہے تقریباً 19% پچھلے سال نیچے آئی ہے. انڈیکس جرمنی کی مارکیٹ پورے سال کا تجزیہ کرتے ہوئے تو 29% مارکیٹ نیچے آئی ہے. اور اسی طرح ہم جاپان کی بات کریں, ہانگ کانگ کی مارکیٹ کی بات کریں, تمام دنیا کی مارکیٹیں اگر پورے سال کا جائزہ لے رہے ہیں تو سب مندی میں آئی ہے. اگر آنے والی سال کے پرجوش میں سمجھتا ہوں جوش اور ایک پرجوش طریقے سے جو استقبال کرنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ سے چلتی ہے, تو آج مارکیٹ میں جو کہ آپ کو بتا آخری ہفتہ ہے اس سال کو ختم ہونے میں, تو تمام دنیا کی مارکیٹوں میں سینٹیمنٹس پازیٹیو نظر آنا شروع ہو رہا ہے. اور اسی پازیٹیو مارکیٹ سینٹیمنٹس کو لے کے پاکستان کی مارکیٹ بھی بڑی پرامید ہے
کہ جب دنیا بھر کے اندر جو ہے مارکیٹ میں اکنامک پوزیشن بہتر ہوگی تو پاکستان بھی سر فہرست ہوگا انشاءاللہ اپنی تیزی میں دیکھنے کے لیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی تو جو سیاسی عدم استحکام جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں اس کی راہ میں کتنے بڑا رکاوٹ ہے، کیونکہ ظاہر تسلسل اس سے برقرار نہیں رہ پاتا؟ ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا اور جو میثاق معیشت ہے اس پر اکتفا کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل جو سچویشن ہو وہ کول ڈاؤن ہو، اور خاص اپوزیشن اور گورنمنٹ کو اگر واقعی نہیں وہ عوام کی سوچتے ہیں تو اپنی ذات سے بالاتر ہو کے معیشت سوچنا۔ اور رہا سوال کے پالیسیز کی، آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جب سے آئے ہیں ان کی پالیسیز میں کوئی یو ٹرن نظر نہیں آیا، کیونکہ پچھلی حکومت میں آپ کو پتا تھا کہ کافی عرصے تک لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ایک پالیسی بنتی تھی پھر دوبارہ سے یو ٹرن بن جاتا تھا، اور کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں بڑے پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی پالیسی بنے اور پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ پالیسی کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہاں پہ اس معاملے میں اگر ہم کریں گے پالیسیز کے بارے میں، وہ بڑے فرم ہیں، ان جتنی اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کبھی بھی اس اپنی اسٹیٹمنٹ سے اسحاق ڈار صاحب نے بیک آؤٹ نہیں کیا، تو یہ تو انویسٹرز بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ انویسٹرز پریشان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا بھر کی اکنامک کنڈیشن جو ہے نا وہ اس وقت بڑے ہی مشکل پوزیشن میں ہے، اور یہ بات در حقیقت ہے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دنیا بھر کے اندر اگر آپ مارکیٹ کے بارے میں معلوم کریں گے تو ہم بات کریں یا کسی بات کریں دباؤ میں ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ ریسیشن جسے ایک آفیشلی تو ہم نہیں کہیں گے دنیا بھر میں ریسیشن آ چکی ہے، مگر کیا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریسیشن جو ہے یہ آلریڈی اپنی شکل اختیار کر چکی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پر امید ہے کہ انشاءاللہ 3-4 ماہ میں دنیا بھر کے اندر یہ ریسیشن کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو مختلف صورتحال ہے، مختلف ملکوں کے تجزیے مختلف باتیں کر رہے ہیں، مگر زیادہ تر 90% لوگوں نے یہی کہا ہے پچھلے سال جو اکنامک کی تو مولوی صاحب تھوڑا سا اپنی لوکیشن بہتر کیجیے گا، آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن محسوس ہو رہی ہے، کلیئر سننے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب آپ نے وزیر خزانہ کی بات کی ہے اور ان کی جانب سے جو پالیسیز لائی گئی ہیں، نافذ کی گئی ہیں، ان کو آپ نے سراہا ہے، ساتھ ساتھ اب عالمی جو مارکیٹ کی صورتحال اس کی آپ نے بات کی ہے۔ انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں ٹیکس کی وصولی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب بھی بات کی جاتی ہے ٹیکس دہندگان سے تو سب دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو نا دہندگان کون سے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ بزنس کمیونٹی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے حکومت پاکستان کی اور وزارت خزانہ کی کیا مدد کر سکتی ہے اور کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں بزنس کمیونٹی نے پچھلے 70 سالوں سے اسی ملک سے کمایا ہے اور اسی ملک نے اس بزنس کمیونٹی کو آگے بڑھایا ہے۔ اب وقت آتا ہے جب ملک کے لیے کام کرنے کا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ کی طرح بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کمپلینس کرتی ہے۔ دیکھیں اگر یہی 70 سال پہلے بزنس کمیونٹی میں سولر انرجی کی طرف آئے ہوتے تو آج پاکستان ایک مختلف جگہ پہ کھڑا ہوتا، مگر بزنس کمیونٹی نے اپنی انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنے کی جگہ ہمیشہ سے حکومت سے ڈو مور کی ریکویسٹ کی ہے، اور یہی ڈو مور کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ انہوں نے ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رکھا ہے حکومت سے۔ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ انڈسٹریز جو ہے وہ اکثر حکومتوں کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ میجر ڈیولپمنٹ ورک ہو، کیونکہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کی سڑکیں نہیں بنیں گی، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کی جو سہولتیں جو بزنس مین مانگتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ دنیا بھر کے اندر دیکھیں گیس کی قیمتیں جب مہنگی ہو جاتی ہے اور حکومت کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے۔ اگر بزنس کمیونٹی گیس کی بات کرتے ہیں تو آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جو ہے بزنس کمیونٹی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کاٹی کی، جو کہ 6000 انڈسٹری ایسوسی ایشن تھی، وہ 6 اتنے سالوں میں جب سے بنی ہے انہوں نے کوئی سولر انرجی کی طرف نہیں گئے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کی میں دیکھیں میٹنگوں اور ایسوسی ایشن کی میٹنگوں کی اور ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے ہٹ کے
इनको ये चाहिए कि गौर करें कि मुल्क के लिए प्रैक्टिकल तौर पे हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह हमारे मईशत के जो माहिर हैं वो हमेशा सियासतदानों के साथ मिले हुए होते हैं, और आप देखिए जो इकोनॉमिक व्यूज होते हैं वो पॉलिटिकल व्यूज से मिले हुए होते हैं। तो हमें चाहिए इकोनॉमिस्ट जो है वो प्रॉपर इकोनॉमिस्ट हो, जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, ताकि प्रॉपर इकोनॉमिक के तहत हम बात कर सकें। एक प्रॉपर थिंक टैंक बनना चाहिए पाकिस्तान के लिए, जो कि प्रोफेशनल लोगों से उसका ताल्लुक हो, और वो प्रपोजल जो है वो प्रैक्टिकली आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, माशी तज्ज़ियाकार, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जो भी सूरत हाल है उस पर आप बात कर रहे थे। बहुत ज़रूरी बात उन्होंने कही है जी कि टैक्स का निज़ाम जब तक मजबूत और मरबूत नहीं होगा, जब तक आप और मैं ये महसूस नहीं करेंगे कि अगर हम बहुत सी फैसिलिटीज़ को हासिल कर रहे हैं तो उसकी कोई कीमत है, वो हमें देनी है और लाजमी देनी है, इसमें कोई भी जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकती बात, क्योंकि कोई तरक्की नहीं हो सकती मुल्क में जब तक आप टैक्स अदा नहीं करते। तो ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है। यहाँ आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान बैतुल माल ने माली मुश्किलात के तदारुक के लिए यतीम बच्चों की तालीम के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चे बच्चियाँ अपनी तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। मज़ीद तफसील से हमें आगाह करेंगे लाहौर से नवीद हयात। बैतुल माल की जानिब से बेवा खवातीन और यतीम बच्चों की कफालत और तालीम के सिलसिले में यतीम और बेवा सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत एक यतीम बच्चे के लिए 6,000 जबकि एक से ज्यादा यतीम बच्चों की सूरत में माहाना 10,000 रुपए अदा किए जाएंगे। इस स्कीम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनरोल खवातीन को चुना गया है। तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि महंगाई और गुर्बत के दौर में बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाएंगे। MD बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की गरीब आवाम की खिदमत करना है। बेवा खवातीन का कहना है कि इस तर्ज के प्रोग्राम से उनकी खासी मदद होगी और उनके बच्चे तालीम के जेवर से भी रास्ता हो जाएंगे। बैतुल माल हमारे बच्चों को चेक देता है तो उससे हमारे बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे होते हैं। मजबूरी सिर्फ है, इनका बाप नहीं है तो मुझे एक घर में काम करना पड़ता है और उससे मेरी आमदनी पूरी नहीं होती। पाकिस्तान बैतुल माल के मुताबिक बेवा खवातीन को निजी बैंक के जरिए बआसानी रकम फ्राहम की जाएगी ताकि किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझको खोया नहीं। बिल्कुल जी, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम माहे मुनीर न्याजी, उनको हमसे बिछड़े 16 बरस बीत चुके हैं। उनकी अदबी खिदमात बेशुमार और उसी का अहाता कर रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। मोहब्बत, एहसास और अपनायत से लबरेज जज्बात के तर्जुमान मुनीर न्याजी मुनफरद मिजाज के शायर थे, जिनकी शायरी ने हर दौर में अपना जादू जगाया। वो 9 अप्रैल 1928 को मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए और साहिवाल को अपना मस्कन बनाया। शेर सुखन के उफक पर नमूदार हुए तो मुनफरद उसलूब से दुनिया अदब को मुनव्वर कर दिया। मुनीर न्याजी ने जिन एहसासात को अपनी शायरी में ढाला, उनका ताल्लुक किसी मावराई दुनिया से नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकतों से है। उन्होंने नई फजा, नए लहजे और नए अंदाज से शेरी रिवायत में जिद्दत पैदा की और अपने हम असर शायरों में मुमताज ठहरे। उनकी शायरी लतीफ जज्बात का इजहार है, जिसमें माजी के गुमशुदा मनाजिर और रिश्तों से इनहराफ का कर्ब नुमाया है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वो वुसत के कायल हैं, इसीलिए तो चांद, सितारे, फलक, सहरा, सूरज और खला जैसी इलामात का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पंजाबी में भी शायरी की। कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ
मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और जनाब, गुलजार शायरी में खिले फूलों में मुख्तलिफ रंगोबू की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम वफ़ात है। परवीन शाकिर का कलाम उर्दू शायरी रिवायत में निस्वानी लबो लहजे का नया बाब वा करता है। इनके फ़न के हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे मलिक उमर अपनी इस रिपोर्ट में। इख्तिसार से कहा जाए तो परवीन शाकिर की शायरी का महवर मोहब्बत है, जो कायनात के अंग अंग में सरायत करती महसूस होती है। यही वो जज्बा है जिसके गिर्द परवीन शाकिर की निसाइयत, हिसासियत, इंसानियत, तन्हाई, कुर्ब मलाल, हुस्न और रानाई, जज्बातियत वगैरह घूमती नजर आती है। यही जज्बा उनके तमाम मजमूआए कलाम में रचा बसा दिखाई देता है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। परवीन शाकिर अपने ख्याल और फिक्र को पूरी वजाहत और दयानत के साथ बयान करती हैं, चाहे मामलात इश्क हों या कारोबार मुआशरत व सियासत। जब वो खामा फरसाई करती हैं तो किसी किस्म का इबाम और उलझाव नहीं छोड़ती। लिताफत, शोखी, ख्याल का जमाल और एहसास की नाजुकी भी निसाइयत की तमाम तर हुस्न और दिलकशी के साथ परवीन शाकिर के यहाँ जलवागर हैं। बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। परवीन शाकिर के उसलूब की असरगीरियत का दायरा इस कदर वसी है कि आज भी उनसे इस्तिफादा किए बगैर गुजारा नहीं। उनकी मकबूलियत खास व आम में यकसां है। यही वजह है कि उनके कलाम को वक्त के मशहूर गुलकारों ने गा कर अमर कर दिया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब न्यूज़ शो में कुछ बात करेंगे हम मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर सर्द और खुश्क है। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने के हवाले से पेशगोई की गई है। हम अगर रात के औकात की बात करें तो शिमाल और मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात ऐसे हैं जहां हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की भी तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। कुछ बात करते हैं बल्तिस्तान डिवीजन की, जहां सर्दी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज दूसरे रोज भी स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड हुआ है। इस शिद्दत की सर्दी के बायस बल्तिस्तान में कई मकामात पर दरिया सिंध का रवां पानी भी जमने लगा है। और नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवे की तलब में इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवे की अफादियत और इसके इस्तेमाल के हवाले से ज़बरदस्ती रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद उस्मान ने, आपके साथ शेयर करते हैं। मौसम सरमा में खुश्क मेवजात को कुदरत का बेहतरीन तोहफा कहा जाए तो गलत ना होगा। खुश्क मेवजात नाकाबिले यकीन हद तक ग़िज़ाइयत से भरपूर और ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब हैं। सर्द मौसम की आमद के साथ ही बाजारों में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, चलगोजे, किशमिश, इंजीर और दीगर खुश्क मेवजात वाफर मिकदार में नजर आते हैं। सर्दी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता, गर्मी में ये चीज़ें नहीं बिकता। बस आजकल तो मूंगफली और चने ज्यादा चलता है, खजूरें चलता है। शहरियों को जब जाड़े के मौसम में सर्द हवा लगती है तो अपनी तलब और जरूरत के तहत खुश्क मेवजात खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख करते हैं। चलगोजा काफी महंगा भी है, चलगोजा हमें पसंद है। यहाँ पे अंजीर ज्यादा पसंद है, अंजीर लेंगे, और मलोक जो काले वाला होता है। महंगाई भी है लेकिन फिर भी ज़रूरियात है, सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है, तो उस हिसाब से ये लाजमी लेना पड़ता है। मुझे इसमें पिस्ता और काजू बहुत ज़्यादा पसंद है। कुदरती मदाफियत से भरपूर खुश्क मेवजात को अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत के बायस सुपर फूड का दर्जा भी दिया जाता है। माहिरीन का कहना है खुश्क मेवजात का बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत से मूज़ी अमराज से बचाव में मुआवन साबित होता है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाब, उधर अमेरिका, कनाडा और जापान में भी बर्फानी तूफानों की शिद्दत बरकरार है। अमेरिका में बर्फानी तूफान के दौरान मुख्तलिफ हादसात हुए हैं और अब तक 38 अफराद हलाक हो चुके हैं। 48 अमरीकी रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया है। अटलांटा, शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और न्यूयॉर्क में क्रिसमस के दिन हज़ारों परवाजें मनसूखी या फिर ताख़ीर का शिकार रहीं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
طوفان کی وجہ سے امریکہ بھر میں لاکھوں صارفین اب تک بجلی سے بھی محروم ہیں۔ نیو یارک کے علاقے بفیلو کو برفانی طوفان نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ مختلف حادثات اور گاڑی میں پھنس جانے کے باعث